नमस्कार सभी भक्तजनों का सादर स्वागत है हमारे थर्सडे की सत्संग जूम मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का पाठ करते हैं निरंतर। तो हमने चैप्टर 17 श्लोक 15 तक कर लिया था पिछले हफ्ते। इस हफ्ते हम लोग चैप्टर 17 श्लोक नंबर 16 से शुरू करने वाले हैं और यतेंद्र जी कुछ इसका पहले का बताएंगे और उसके बाद शुरू करेंगे। चैप्टर श्लोका 16 से 20 तक 5 श्लोका का पाठ किया जाएगा और उसके बाद उसके अंतर्गत अगर किसी को कोई प्रश्न है कृपया अपना नोटबुक पे नोट कर लीजिए, क्योंकि हम बीच में नहीं रुकेंगे। 5 श्लोक करने के बाद आप अपना अपना क्वेश्चन या अपना कमेंट्स जो भी है वो रख सकते हैं। धन्यवाद यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी. Now we will proceed to chapter 17, starting from sloka 16. Now before we go, just like to recap, in the previous shlokas, Lord Krishna explained about the three modes of material nature and how the different functions fall under these three different functions. First, he explained the food in three modes. And he gave the example of the kind of food which we take, which one is in the mode of goodness, which one is in the mode of passion, and which one is in the mode of ignorance. Then he explained the sacrifice, yagnas, in how people do yagnas. They also do in three modes. He explained that the sacrifice that is performed according to the spiritual injunction without any expectation reward as a matter of duty, that is in the mode of goodness. And the sacrifice which is performed for material gain, generally 90% people do performance in this mode, and this is in the mode of passion. And third is the sacrifice which people don't follow any scriptural injunctions and without impurity, that is the mode of ignorance. Then he explained about the about the worship. So he said that worship of the Supreme Lord, the Brahmins, the spiritual master, the wise and elders, when it is done with the observance of cleanliness, simplicity, celibacy, and non-violence, is declared as the austerity of the body. This is the austerity of the body. He is explaining three kind of austerity. Okay. Then he explained about the words which do not cause any distress or do not cause any distress to anybody, are truthful, inoffensive, and beneficial, as well as the regular recitation of the Vedic scripture. These are declared as austerity of speech. So then he explained the serenity of thought, gentleness, silence, self-control, and purity of purpose. All these are declared as the austerity of mind. So the three austerity of body, mind, and speech. श्लोका भी कर लीजिए। He is going to explain in the sloka 16. Sloka 16, he's explaining that the serenity of the thought, gentleness, silence, and I will read the shloka. He said, Manaha prasad saumyattam maunam atma vinigraham bhav shansud ityet tapo manasam uchite. This is the मन का तप है. मन का तप क्या है? Serenity of thought, Manha Prasad, means serenity of Man Prasad, Sometam, gentleness, Maunam, silence, self-control, Atma Vinigraha means self-control, and purity of purpose, Bhavashan Shuddha. These are declared as the austerity of the mind. Okay, because these all functions
they are connected with the mind. And thought and your nature and your silence, self-control, these are done by the mind. Okay, now we will come to three type of Shraddha from second. Shraddha parya taptam tapastir vidham nare apflakanchara yukte satikam parishakshate. So austerities that is performed, sorry, Shraddha se yukt. I'm just trying to, in the English, it's going from Hindi to English, it takes up. When devout person with ardent faith practice these three austerities, which was above, mind, body, and speech austerity, without yearning for material rewards, they are designated as austerity in the mode of goodness. So first Lord Krishna explained the austerities of three functional austerity. Austerity of the austerity of the mind, speech, and the body. Okay. Now these three have three austerities. जिसको हम कह सकते हैं मनसा वाचा कर्मणा. Yeah, mansa vacha karmana. This is a very quick. Mansa vacha karmana. Karmana, the body se what we do, that's mansa vacha karmana. इसमें कर्मणा की जगह लॉर्ड कृष्ण ने बॉडी का आ गया. बॉडी से तो बॉडी. Yeah, but actually karma is from all the three. ठीक है. Okay. So now he's dividing it into the three mode. And he says that when it is done without earning for material rewards, they are designated as austerity in the mode of goodness. This not expecting any reward, what you are doing. I mean, it comes everywhere. It comes in chapter 3. It came in the yagya, when he was describing what kind of three kinds of yagya, and anything which is done as a matter of duty. And nothing for me. This is only my dharma and I am doing. There is always emphasis in Sri Bhagavad Gita. And I think if we learn to do that, it will take away our miseries, because we did it without any expectation. So whatever we got, this is just the Bhagavad Prasad. Okay, so now we will go to the next one. 18. Satkar man pujarth tapo dambhen chayvyat kriyate tadiham proktam rajsam achalam adhruvam. Austerity that is performed with ostentation for the sake of gaining honor, respect, and adoration is in the mode of passion. It benefits all unstable and transitory. So, for show off that I am so austere, if that is done with the purpose of gaining the respect, somebody can afford proper clothes, and just to show off, he walks in a langoti. That's in the mode of passion, because this is show off so that people can respect it. That Mahatma Ji is so great that he is going like that. Now the third one we will say मूल ग्रहण आत्मनो यत् पीडिया कृते तपा परस्योत् साधनार्थम वा तत्तामसम उदाहरतम. Austerity that is performed by those with confused notions and which involves torturing the self or harming others is described to be in the mode of ignorance.
this is also Lord Krishna is not recommending the torturing the body. You must have seen, at one time in India, you can see in outside the temple that somebody is lying on the bed of nails. Mm. Now there is not much seen, but I know in 50s, 60s there are lots of people like that outside the temple. So that is in the mode of ignorance, torturing the body, or sometimes you're harming the other. Harming the other means the animal sacrifice or those tantric people do. These are all in the mode of ignorance, and they bring very bad results. So we will do two more, and then we will. Now Lord Krishna come to the charities. Charities are also in the mode of goodness, in the mode of passion, and in the mode of ignorance. Dattavyam it yaddanam diyate anupakarane deshe kale cha patre cha taddanam satvikam smritam. He says charity given to a worthy person simply because it is right to give without consideration of anything in return at the proper time and in the proper place is stated to be in the mode of goodness. So here the important thing is worthy person who should receive our charity. If we go by our secular way, so we give to the person needy, hungry, that doesn't have anything. Naturally, we should give the charity. But according to Vedic system, there are certain people are entitled to give and take charity. Kshatri is not supposed to take any charity, neither Vaishya. If charity in our Varnashram system, if somebody is entitled to receive charity, is either Brahmana or maybe other, not Kshatri class. But we are not following the exactly Vedic system in this Kali Yuga. So now at the time, according to my opinion, charity is the person who is really suffering and who needs it. Okay, and then he says there should be consideration of desh and kal and patra mean who is what they are receiving. Let me see what is meant by this desh and kal, mean time and place. This is the thing is that suppose desh, place, what place your charity should be directed. So your charity should be directed to the place where there is a scarcity of something, okay? If there is somewhere there is a famine, then charity towards that dish takes priority than charity to any other place. And time also, if there is some bad time going on in some place, that's where the charity should go. And also it's people observe that where charity we should give, Tirtha, the pilgrimage place, or at the bank of the river Ganges, Haridwar, Vrindavan, that places are also good for giving the charities. That is the mode of goodness. Next is charity in the mode of passion, Rajoguna. Yattu priti upkarthar phalam uddeshya va punah diyate cha pariklaksham taddanam rajasam smritam. Charity given with reluctance, with the hope of a return, or in expectation of a reward, is said to be in the mode of passion. With the reluctance means
तबीयत है नहीं देने की, लेकिन फिर सोच रहे हैं कि दे दें, कह रहे हैं लोग क्या कहेंगे. That's giving the charity in that way, reluctance, and with the hope of a return. We have given to charity somebody, and we are expecting that maybe he will pray for us, maybe he will return the favor. That is said to be in the mode of passion. Now, I'm taking another shlok, sixth one, so that we can, this one subject matter we can cover, which is the charity in the mode of charity. So this one is, next one in shloka 22, Lord Krishna is explaining the charity in the mode of ignorance. Adesh kale yad danam apatre bhasht diyate asatkram va agyatam tattamsam udahartam. And that charity which is given at the wrong place and wrong time to unworthy person without showing respect or with contempt is held to be of the nature of nuisance, in the mode of passion. We know, we can give charity at the wrong place and wrong time, an unworthy person, and without showing any respect, with contempt. We give to somebody and show the disrespect. Oh, मांग रहा हो तो तुम्हें दे रहा हूं, नहीं तो मेरी तबीयत देखने की नहीं है. That kind of is in the mode of ignorance. So now we can discuss these 6 shlokas. Whatever question are coming to your mind, we can take. Yeah. So I'll start the first one. You guys think about whatever questions you had. Oh, you have already, Raji? Okay, go ahead. Yeah, like there is tantric yoga, right? Tantric? So that doesn't take us to the path of realization. Listen, there are 2 kind of tantra. One is genuine tantra, okay, which is from the real scriptures, just like Shiv Sutra. There is a tantra, there is a tantric way. In Devi system, in Shakti system, there is a tantric way, okay. That tantra is okay, and it's valid, it's according to the Shastra. But then there is another tantra, okay, which is a fake tantra, जो कि तांत्रिक लोग आजकल करते हैं. That is not recommended. So what do they do? Okay, you have told us the names, Devi Tantra and Shakti Tantra and Shiv Sutra Tantra, and there is also Panchratra Vishnu, worshipper of Vishnu. They also have some tantra. so what is the difference? What is being done today? And You see, tantra involves lots of psychological maneuvering. Okay, in Bhagavad Bhakti, you just with clean heart you do Bhagavad puja, kirtan, bhajan, aradhan. But in tantra, they try to change their mind by various exercises, okay, so that they can transcend the mind and see beyond mind, okay. But since they play with the mind and its action, so there is a danger. Some people have gone mad after following the tantra, trying to raise the kundalini. But this our bhakti path, there is no bad side effect. Yeah, I'll say just a short thing about tantra that I noticed. There is a tantra geared towards yoga, okay, and then some people make it towards bhog, okay. Yeah. So that's a difference. And even you start going towards the tantra of yoga, and then in the middle somewhere
Maya is so prabal, it weirds you towards the bhog, and then you are stuck there. So I found many people kind of got lost because of that effect of Maya. You know, their intentions were good, but they didn't succeed. अच्छा, पहले ओम जी कुछ कह रहे थे? देखिए, एक ऐसे मैं आजकल नवधा भक्ति पढ़ रहा हूँ, और मैंने अभी आप लोगों के पास एक स्वामी राजेशानंद जी की वो भेजा है नवधा भक्ति के ऊपर। तो नवधा भक्ति भगवान ने शिवरी को बताई थी, शिवरी को, और उसको बड़ा पात माना। तो उन्होंने कहा नवम सरल सब छल ही ना, नवम नव भक्ति है वो सरल, और नवम सरल मम नवम सरल मम भरोस न दीना। तो भगवान का भरोसा करो और दीन न हो, तो वो वही सबसे बड़ी नवधा भक्ति में श्रेष्ठ है। और ये अगर आप उसको, जो मैंने वीडियो भेजा है, उसको आप देखेंगे तो आपको गदगद हो जाएंगे कि कितना सुंदर उन्होंने निरूपण किया है। और पहला परम भक्त सत्संग, तो परम भक्ति जो हम लोग कर रहे हैं वो सत्संग ही है। सबसे श्रेष्ठ भक्ति सत्संग है, और सत्संग की महिमा बड़ी बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ, इसमें 9 नवदा भक्ति मीन्स देयर इज 9 एलिमेंट ऑफ भक्ति, एंड दोज 9 एलिमेंट्स टेक्स योर mind and feelings and emotions and sentiments towards God. And what are those 9? I will tell you. For number first is hearing, Shravan. Shravan means first you hear by glories of the Lord by ears. That attracts, you are attracted. Then is Kirtan. Shravanam, Kirtanam, Smaranam. Smaranam is remember. And then Pad Sevanam, serving his lotus feet. Archana, worship. Vandana, protesting before him. Dasya, being his servant. अर्चना के पहले क्या बोला? अर्चना के पहले बोला पाद सेवन. पाद सेवन means serving the lotus feet. You know, हम लोग पाद सेवन करते हैं, बड़ों के पैर छूते हैं, ऐसे ही उनके पैरों पे जाके दंडवत करते हैं ना. जब when we say the deity, मूर्ति पे जाके पैरों पे पड़ना, हाँ, that's a पाद सेवन. उसके बाद अर्चना means worshipping him, उसकी आरती करना और ये सब. And then is वंदना. वंदना means इसका इंग्लिश में क्या होगा? prostrating before him. प्रार्थना, प्रोस्टेट हो सकता है, प्रेयर हो सकता है, प्रेयर वगैरह. आपकी तो पुत्री का नाम है वंदना. वंदना पूजा कर सकते हैं. वंदना है. अच्छा, पूजा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए. And then is feeling दास्य भाव, feeling that I am servant of the Lord, just like Hanuman, you know, हमेशा भगवत कार्य के लिए तैयार. And then सांख्य, मतलब before befriending him, okay, the Lord is my friend, just like Arjun. And then Atmanivedanam, mean offering oneself to him, just thinking that I am with you, Lord, save me. So these are 9: Shravan, Kirtan, Smaran, Pad Sevan, Archana, Vandana, Dasya, Sankhya, and Atmanivedan. That's called साख्य. आप कह रहे हैं साख्य? हाँ, साख्य. नहीं, कई लोग सोचेंगे ऐसा शायद सांख्य योग की बात कर रहे हैं. सांख्य नहीं है, साख्यम. वो SAN, इसमें N नहीं है. असल में ये जो है श्रीमद् भागवतम से है, और यही इसका निरूपण स्वामी जी ने अपने वीडियो में बहुत अच्छा किया है. इतना सुंदर किया है कि आप गदगद हो जाएंगे सुनकर. देखिए, इस भक्ति का जो है मोस्ट ब्यूटीफुल ग्रंथ, वो है नारद भक्ति सूत्र. जैसे योग का है पतंजलि योग सूत्र, उसी तरीके से नारद भक्ति सूत्र है. दैट इज द मोस्ट टॉप मोस्ट. ओके, अगर हम लोगों का ये इस खत्म हो गया, उसके बाद वी विल टेक समडे. उसमें मेथड्स बताए हैं कि हाउ योर भक्ति कितनी तेजी से बढ़ती है, कैसे कैसे बढ़ती है. ठीक है. असल में मानस में भक्ति का बहुत अच्छा निरूपण किया है. बार बार भक्ति का इतना किया है कि उन्होंने भक्ति को ज्ञान से ऊपर माना है, क्योंकि ज्ञान के अंदर विवाद होता है.
नहीं देखिए बुद्धि ये आती है। और इस चक्कर में देखिए, मत सुनिए, पड़िए मेरी कि बात सुन लीजिएगा। हाँ, ज्ञान yes, में बुद्धि yes, आती है और बुद्धि के अंदर वो तर्क विचार आते हैं, पर भक्ति के अंदर केवल पूर्ण श्रद्धा होती है और कुछ नहीं होती है, विवाद नहीं होता है, उसमें कुछ लेन देन नहीं है। एक रूप से भगवान के अंदर, उसमें भगवान में पूरा लीन होना। और ज्ञान में हमेशा बुद्धि आती है, बुद्धि निर्णय करके आदमी को विचलित कर देती है कभी कभी। या चलिए देखिए, वो एक भी बात बताओ, एक बार प्लीज जस्ट लेट मी टेल, ओके। ज्ञान, कर्म, भक्ति, ध्यान, योग, ओके, इसमें एवर नेवर पुट वन ओवर अदर, ओके। अगर आप ये करेंगे ना तो सबसे हाथ धो लेंगे। या क्योंकि वो सब कुछ भगवान की कृपा से ही आना है। Yeah. अगर किसी को ज्ञान योग देना है भगवान ने पहले, तो उसको हाँ। ज्ञान योग की तरफ ही धकेलना। किसी को भक्ति योग देना तो उसको कहना है ठीक है, इस ज्ञान से क्या इसको लेना देना, इसको मैं सीधा ही भक्ति देता हूँ। क्या भक्ति? तो वो बंदा अगर बहुत लकी है। बट फिर वो आपकी वो कैटेगरी में आएगा ओम जी, जिसको भगवान पहले ही भक्ति प्रदान कर देंगे ना। जैसे मीराबाई की स्टोरी में देख रहा था, ये टीवी पे उसका सीरियल उसमें दिखा रहे थे, तो उसको तो जैसे बचपन से ही, उसके पिछले जन्म से ही चला रहा था उसका कर्म फल, तो उसको भगवान ने इस जन्म में काम दे दिया कि हाँ मेरा भक्ति संगीत तुमने करना है, कविताएं लिखनी है, व्हाटएवर। तो उसको बचपन से ही भगवान की भक्ति लगी हुई थी। क्योंकि इससे मैं भगवान विवाद नहीं कहना चाहता हूँ, पर जो ज्ञान का जो निरूपण है अंत में, भगवान की अचिंत्य कृपा, श्रद्धा पूर्ण रूपेण से, तो भगवान जब आपको भक्ति देते हैं तो ज्ञान सब अपने आप ही आ जाता है, सब कुछ आता है। जैसे काकभूषण जी थे, सब कुछ ज्ञान आ गया उनको बिना कुछ पढ़े लिखे, सही बात। क्योंकि भक्ति अति कृपा से भक्ति में सब कुछ आता है, सब निरूपण है। और इसमें श्री भागवतम के अंदर पहले भक्ति का ही रूपण आया है, भक्ति का ही रूपण आया है। देखिए, ज्ञान, भक्ति से ज्ञान आता है, ज्ञान से तो भक्ति क्या आती आती है? ध्यान से ज्ञान और भक्ति दोनों आते हैं, कर्म से सब आते हैं। ये सब एक दूसरे के हैं। जब आपको भक्ति है तो आपके ये कर्म सहायक भी है, और दूसरे एक दूसरे के सहायक है, पूरक है। ठीक है, अभी हाँ। पहले उषा जी कुछ कह रही थी, अपना माइक ओपन कर लीजिए, कुछ कहना था आपने। माइक आपका ऑफ है। माय गॉड। जो ओम भाई साहब ने कहा है कि जब अंदर भक्ति पैदा होती तो ज्ञान अपने आप ही अंदर से आना शुरू हो जाता है। ठीक है। अपने आप ही फिर वो किताबें भी लिखना शुरू कर देते हैं, कविताएं भी लिखना। हाँ, पिछले जन्म का किसी का कनेक्शन हो तो वो तो बड़े आश्चर्य की बात होती है, कोई होता है। बाकी जिस दिन भक्ति अंदर पैदा हो गई, उस दिन ज्ञान अपने आप आना शुरू हो जाएगा। और ज्ञान जिस दिन आ गया उस दिन भक्ति आ जाएगी। दे आर जस्ट, क्योंकि जब ज्ञान आया तो आपको, आई मीन, यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम भक्ति। जब ज्ञान आया तो भक्ति तो आएगी ही। और तो जिनकी बात मैं पहले करता था, ये इनकी बात, जो ब्रिज लाल अंग्रेज जो हैं, तो इनको हम पिताजी कहते थे। तो इनका सिस्टम डिफरेंट था। इनको पहले ध्यान योग आया, और उसके बाद ध्यान योग के बाद इनको उसमें इंटरेस्ट, जैसे कहा ना आपने, कि फिर नॉलेज अपने आप आने लगती है उनको। उन्होंने पढ़ा कुछ नहीं था, भगवत गीता नहीं पढ़ी थी, कुछ नहीं, बस अपना मजे से जिंदगी जी रहे थे। जैसे ध्यान योग आया तो उनके शरीर में कुछ चेंजेस आने लग गई। मैं ये नहीं खा सकता, मैं वो नहीं खा सकता, मैं ये करूंगा वो करूँ। और उसके बाद फिर जल्दी वैसे ही भगवत गीता उठा के पढ़ने लग गए, वैसे ही वो जो गुरु ग्रंथ साहब उठा के पढ़ने लग गए। तो पंजाबी का उनको पता था, उर्दू में पढ़ते थे। उनको तो इतनी नॉलेज हो गई, वो लेक्चर ऐसे देते थे जैसे कोई बहुत बड़ा महात्मा हो। उनकी वीडियो टेप कभी आपको दिखाऊंगा, जबरदस्त है। तो किताबें लिख दी, वो सब मैंने टाइप की उनकी। तो मैं हैरान था उनके ज्ञान से काफी। तो अब सूट बूट पहन के बैठते थे, जैसे जितेंद्र जी कहते हैं ना कि कुछ दिखावा करने हो तो अपना वो दूसरा चोला चूला धारण कर लो। कोई चोला शोला नहीं, और पूरे सूट टाई वगैरह ला के, जो उनकी अपनी स्टाइल थी बाबू ठाट वाली, वो पहन के बैठे होते थे और लेक्चर करते थे, ये वाला ध्यान योग ज्ञान योग वाला। तो ऐसे ही है कि कभी किसी को किसी चीज की प्राप्ति करे, किसी को, पर अंत पे तो वही भक्ति में ही फिर हो जाएगा, क्योंकि अंत में उनको
भगवान कृष्ण के दर्शन हुए तो भक्ति में लीन हो गए। ये भगवान believe, I आपका जो believe. माइंड है कहाँ से कहाँ भेज देंगे आपको खुद ही पता नहीं। हाँ बताए क्या आप सुरेंद्र जी कह रहे थे कुछ? सुरेंद्र जी अभी थोड़ा सा उठ के गए हैं, अच्छा आ जाते हैं। तब तक किसी और का कोई क्वेश्चन या कमेंट हो तो प्लीज अपना माइक। जरा 9 भक्ति रिपीट कर देंगे नाम उनके दोबारा। 9 ओके हाँ। या श्रवणम, hearing, kirtan, chanting the name, smaranam, remembering, pad sevan, serving his lotus feet, archana, archan, worshipping him as per scripture, vandana, prostrating before him, dasya, being his servant, befriending him, being his friend, atmanivedanam, offering oneself to him. आत्मनिवेदन यह है कि आप भगवान के सामने कुछ भी बोल दीजिए, मतलब जो भी आपको बक कर रहा है, जो भी है, आत्मनिवेदन से कहते हैं कि जो भी आपके दिल की बात है ना, दिल की बात कभी कभी हम अपने फ्रेंड से या अपने डियर वन से कह देते हैं तो बोझ हल्का हो जाता है ना, तो बजाय उन सब भी किसी भी कीजिए, लेकिन अगर भगवान के सामने अपने दिल की बात कह दो तो बहुत शांति मिलती है। ये मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपने बताया। भगवान से निवेदन करना, उनसे प्रिय कोई है ही नहीं। धन्यवाद। I do believe that. हाँ और क्या, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, उसको रोना है तो उसके आगे बैठ कर रो लो। यस एग्जैक्टली। अच्छा अब और कोई ये जो अभी इन्होंने बताया ना, एक भजन का भी हिस्सा है। मैं कई बार वो भजन गाता हूँ, जब मिलेगा मैं आपको सुनाऊंगा। उसमें स्वामी जी ने एक गाया हुआ है, श्रवणम कीर्तनम। जरूर गाइएगा उसको, आप आज जरूर गाइएगा। चलो मुझे मिलेगा तो। ये पिताजी की जो आप बात बता रहे हैं, जो YouTube पे भी मिलेगा? नहीं, ये YouTube में नहीं डाला हुआ किसी ने। एक्चुअली वो उनके पास वीडियोस हैं, मैं लूंगा, वो मदन पाजी हैं हमारे, उनसे वीडियो लेके अगर मैं आपको दिखा सकूं तो दिखाऊंगा। YouTube पे अभी मेरा ख्याल उन्होंने कुछ नहीं डाला है, तो वो सब ज्यादा टेक्निकल बंदे नहीं है, तो इसलिए वो कुछ करते नहीं ऐसा। तो जो अब कुछ करना होता है तो मुझे ही उनसे लेके करना पड़ता है ऐसे काम तो लेके मैं डालूंगा उनसे। ये जो नवदा भक्ति का है, एक इस्कान का भी बड़ा अच्छा भजन है, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण। वही मैं कह रहा हूँ। तो वो मैंने एक किसी बहुत इस्कॉन का ही स्वामी है कोई, उसने गाया हुआ था, तो वो लगता था जैसे ना, मैं देखा तो नहीं, टेप सुनी है, काफी एजेड जैसा कोई होगा, कोई उनका उधर का स्वामी इंडिया का, तो उसने गाया हुआ है। तो मुझे उसकी स्टाइल बहुत अच्छी लगी। दूसरे लोग तो अपनी अपनी स्टाइल से गाते हैं, पर मुझे उसकी स्टाइल और जो बीट्स उसमें चलाई थी उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं उसी की स्टाइल पे प्रैक्टिस करके गाता हूँ जब मैं गाता हूँ तो दिमाग में घूमता रहता है। चलो आज गा के जरूर सुनाना। चलो मैं देखता हूँ, मुझे मिल गया ना तो भजन कहीं लिखा हुआ है, मैं सुनाऊंगा आपको। अब इसको हम आज we can finish that chapter and then the chapter 18 will start, which is really conclusion of the Gita. 28 से है, पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। हाँ, तो this is now we will go to 23. बड़े अच्छे श्लोक हैं, बहुत प्यारे श्लोक हैं। हाँ या that's अच्छा 23 है। ओम तत्सद इत निर्देशो ब्राह्मण हृदा स्मृता ब्राह्मणास्तेन वेदाश यज्ञाश विहिता पुरा। ओम तत् और सत, ओम तत् और सत,
इन तीनों नामों से जिन परमात्मा का निर्देश किया गया है, उसी परमात्मा ने सृष्टि के आदि में वेद ब्राह्मणों यज्ञों की रचना की थी। इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। द वर्ड ओम tat sat have been declared as symbolic representation of the supreme absolute truth from the beginning of creation. From them came the priest, scriptures, and sacrifice. Om Tat Sat. Tat means that. संस्कृत में two words आते हैं, तो tat आता है that, that which is not here. And second आता है idam. Idam means which is in front of you, this. Idam means this, or tat means that. So idam is the संसार. हमेशा इदम शब्द जो आएगा वो इसी प्रकृति और संसार के लिए आएगा जो कि आपकी आंखों के सामने है, और तत्व वो है जो कि छिपा हुआ है, जिनके कारण ये सब है। तो इसलिए जो लॉर्ड को जो परम सत्य है उसको तत्व, मतलब तत्व हमको परम सत्य दिखाई दे नहीं रहा, तो इसलिए हम दैट करेंगे। एंड ओम इज द मोस्ट होली साउंड, and sat means which exist, the existence. Nothing exists actually. Whatever is in front of your eyes, it never was and it never will be. Oh Like what was yesterday, it's not today. This whole thing has changed. So यतीन जी, ओम के बारे में थोड़ा अच्छा सुनना अच्छा लगेगा। थोड़ा ओम के बारे में और थोड़ा बढ़ाइए, बढ़ा दीजिए थोड़े को। अच्छा, ओम के बारे में अभी ये अच्छा, ये जगह अच्छी है, ये गुड प्लेस टू सी इट। तो we can then we have to go to मांडुक्य उपनिषद। ओम तो मैं मांडुक्य तो ठीक है, उसको छोड़कर जो आपके जो अच्छे जो है ना, आपके जो हृदय के आगार है उसमें ओम बता दीजिएगा। वो मांडुक्य को छोड़ दिए, मांडुक्य तो सब हम लोगों ने पढ़ लिया अच्छी तरीके से। अच्छा, जो मेरा अपना है एक्सपीरियंस ओम उच्चारण से, जो माइंड के चारों तरफ एक विचार श्रृंखला जो हो एट एनी मोमेंट होती है, polluted, which is not very clean, I mean that start shattering. Okay, 2-3 दफे ओम उच्चारण से के बाद I come on a little clean plane, okay, which is ready for the anything, bhakti और ध्यान वगैरह के लिए। That's what I think, that's what I use, but ओम की तो बहुत बड़ी महिमा है। ओम की महिमा इस शार्ट में बताई नहीं जा सकती। उसमें तो ओम के जो 3 शब्द हैं, they take ओम के the 3 words of ओम, they is all your existence. We go through 3 phases: waking phase, dreaming, half sleep phase where there are dreams, and there is a deep sleep phase. And 3. So the A in Om is A, U, and M. So A represents the waking phase, and dreaming and sleeping. Yeah, and the dreaming U is represents the dreaming phase of your existence, and M represents the deep sleep. And after that, there is a Bindi and silence. So the silence represents the 4th stage, which is the Turiya Avastha, where is the real existence is. So Om, the real essence is in the silence which comes after. तो साइलेंस में सारा तीनों है, तीनों स्टेज में है सारा। Yeah, तुरीय अवस्था में तीनों है। Yeah. So it shakes your whole existence. I mean, when you are in a waking state, then the world is in front of your eyes, and in the dream stage,
you create the world. Yeah. And in deep एक sleep, बात है इसमें कि माइंड क्रिएट करता है या यू हाउ व्हाट इज क्रिएटेड हाउ इज क्रिएटेड इज द माइंड फंक्शनिंग और व्हाट इज द प्रोसेस द माइंड इज ऑल वासना करती हैं क्या क्या करती हैं या व्हाट इज द प्रोसेस व्हाट ट्रिगर्स द ड्रीम वासनाएं करती हैं। वो अभी देख लीजिए, जिस टाइम आपकी जैसी डीप रूटेड डिजायर्स हैं आपकी, वही स्वप्न के रूप में आती हैं। या इसका ये मतलब नहीं कि स्वामी they are distorted, they are not in a unison. एक के बाद पता नहीं क्या क्या उसके अंदर वो ऊटपटांग बनाता है ये माइंड ड्रीम के अंदर। पर इसका ये मतलब नहीं कि जो लोग बहुत स्वामी लोग हैं, पहुंचे हुए लोग हैं, जो लोग काफी, उनको नहीं ड्रीम आती होगी, ऐसा नहीं होगा। नहीं, इनको भी आता है। तभी मैंने कहते स्वामी हैं कि बात ड्रीम करी तो है आती है। और बोले कि हाँ हमको भी ड्रीम्स आते हैं। हमारी वासना अभी पता नहीं कितने जन्म की है, वो खत्म नहीं हुई है। या वासना कह लीजिए, और या फिर ऐसा कह लीजिए कि कई लोग जो ड्रीम्स को पे स्टडी करते हैं ना, वो कहते हैं कि दिस इज लाइक अ क्रिएटिव पावर। जैसे अभी जितेंद्र जी कह रहे हैं कि यू क्रिएट ड्रीम्स, सो वी एज ह्यूमंस वी हैव दिस क्रिएटिव पावर to create in a state of dreaming. Maybe other species also have it. You don't create, it is already coming. It's coming as a like cloud. No, it's a totally new creation. देखिए ना, उसमें कई बार तो ऐसी चीजें होती हैं जो हमने देखी नहीं होती, जो हमने सोची नहीं होती, सब it's happening in the dream for real. And कई बार बंदा घबरा के उठता है कि ये क्या हो गया, और कई बार हंसता ही है ड्रीम में, बहुत खुश होता है, या whatever experience is happening. मुझे तो ऐसा ही हुआ है। अगर मैं रात को डर जाता तो मेरी मिसेस टॉप करके मारती मुझे। वो कहती है आते क्यों है ड्रीम, आते क्यों है, इसका कारण क्या है? Shall I say something? हाँ जी, बिमला जी आप बताइए। Actually, I mean, basically, that's what I heard is whatever you think you have before you sleep or in the recent, I mean, a few hours before you are going to sleep, जो कुछ आप सोचते हैं, that is the beginning. और उसके साथ कनेक्शन होता जाता है. And if you really get a dream and a story get develops. Yes. और वो, it's not that as it is you have already thought. You have thought something. And the story, your mind does it. और mind इसलिए करता है कि जैसे जतिंदर जी ने बोला, वासनाएं और desires तो खैर होती ही होती हैं. Apart from that, there are certain things, it's not only the desires which you dream of. You dream of something different, absolutely different. और वो I don't know, I mean we still don't know कि कैसे आते हैं, एक पूरी की पूरी स्टोरी बन जाती है. देखिए मैं बताता हूँ, जब मैं 8 साल का था, मैं साइकिल सीख रहा था और मुझको नहीं आ रही थी। तो एक रात मुझको ड्रीम आया कि मैं परफेक्टली साइकिल चलाते चला जा रहा हूँ, और मुझको इतनी खुशी हुई जब मैं उठा तो मैं बिना मतलब बड़ा दुख हुआ कि अभी तक मेरे को साइकिल नहीं आई। तो मुझे में एक ड्रीम आया जब मैं छोटा सा था कि मैं इंग्लैंड जाऊंगा, तो आई वेंट ऑन साइकिलिंग ऑन द ओशन to England, but this kind of a dream which I dreamt when I was a kid, and I just don't know how to precipitate it, Yeah, that's a very science. There is so much about the dreaming. There are some lucid dreaming. Okay, the people they can create the dream. This is the art. Okay, that's called art of lucid dreaming, and there is the steps, and you can learn. अगर आप learn करना चाहें तो Google lucid dreaming. और lucid dreaming में there are some shamans. Okay, mostly in South America
and Mexico. They are the expert on the lucid dreaming. I mean, you can create your dream. और उस ड्रीम में lucid dream है, you will know that you are dreaming. Okay, you are fully cognizant. जब हमको नॉर्मल ड्रीम में हमको पता नहीं होता है कि हम ड्रीम कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है. तो मेरे ख्याल से अब ये थोड़ा सा आगे बढ़े. ये बिल्कुल बढ़िए, आगे बढ़िए. ओके, ओम तत्सत. जी उषा जी नहीं चलिए आगे भी, फिर कभी पूछेंगे. चलिए ठीक है. So तस्मात् ओम इति उदाहरणं यज्ञ दान तपा क्रिया प्रवर्तन्ते विदो नाक्ता सत्यम ब्रह्मवादना. इसलिए वैदिक सिद्धांत को मानने वाले पुरुषों की शास्त्र विद से नियत यज्ञ दान और तप रूप क्रिया में सदा ओम इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ किया जाता है. So that's why he explained, after explaining the Om Tat Sat, Lord Krishna is explaining that that's why anything, you know, we do the Mangalacharan, we always use Om, or any auspicious things we do. Whenever we perform act of sacrifice, offering charity or undertaking penance, expounder of the Veda always begin by uttering Om according to the prescription of Vedic injunction. यतेन जी, मैंने करीब 3-4 वीक पहले देखा था कि ओम हर रिलीजन में आता है. In every religion the Om start, and they are looking for the origin of religion. They gone up to 50,000 years ago to the primitive, and they found Om inscriptions. Yeah, just Amin. Amin is the Om. क्रिश्चियन आमीन AMEN कहते हैं ना. अच्छा ना. अच्छा, ये 3 प्रकाश सच्चिदानंद घन, तो ये भगवान का ही विवरण है. सच्चिदानंद घन के अंदर ही ओम समाहित है. Yes. और या वो ओम में वो समाहित है. Exactly. तद इत्ते अनवसंधाय फलम यज्ञ दान क्रिया दान क्रियाश विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्ष. आपने वो तस्माद नहीं किया अभी 24वां. ओ सॉरी, या अभी 24वां actually that's I did that. तस्माद ओम इत उदाहरते यज्ञ दान तपा क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सत्यम ब्रह्मवादना. इसलिए वैदिक सिद्धांत को मानने वाले पुरुषों की शास्त्र विद से नियत यज्ञ दान और तपरूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं. So therefore, when performing acts of sacrifice, offering charity, or undertaking penance, expounder of the Vedas always begin by chanting Om according to the prescription of Vedic injunctions. ठीक है? ठीक है. तद इत अनभिसंधाय फलम यज्ञ दान क्रिया दान क्रियाश विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांचवी. दो एक साथ जा रहे हैं. अच्छा, इसमें देखें, therefore person who do not desire fruitive rewards but seek to be free from material entanglements utter the word tat along with the acts of austerity, sacrifice and charity. So first तो ओम का बता दिया, now tat का बता रहे हैं कि the person who do not desire the reward of their activities but seek to be free from material entanglement utter the word tat along with act of austerity, sacrifice and charity. So Om Tat. Now then comes next one. तो इसके एग्जांपल एक तो बता दीजिए साथ में, बाद में तत् वाला दोबारा के बता दीजिए. तत् वाला नहीं समझ आया. ऐसे ओम तत्सत और दूसरी बहुत सी है एग्जांपल. Om Tat Sat. I thought you were going to do 5 together and then talk. You're talking now ahead of it. Yeah. आपने यही कहा था नियम के हम 5 पढ़ेंगे and then bring up this discussion. खत्म होने वाले ही हैं, बस 2-3 और हैं.
तो बिफोर वी गो लाइक तत्, जैसे तत्सवितुर्वरेण्यम, बहुत सी जगह पे तत् लगाया हुआ है ना। हाँ, तत्, अब तत् इसमें कहते हैं ना, क्या है, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि। हाँ, तत्त्वम असि। Yeah. That means wo, tom means you, asi means he is, are. You are that. Yeah. You are that. उसने पूछा, you are that means ये उसका है, क्या कहते हैं, अद्वैत का सिद्धांत। ये अद्वैत की मतलब this, the seer is the seen. माया के कारण हम आपको अपना रूप पता नहीं है, नहीं तो ब्रह्म और उसमें जीव में। यहाँ सत का शब्द आया है ना, वो शाश्वत है, सनातन है। हाँ जी, चलिए हो गया। अच्छा, इसमें तत् का बताते हैं। तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए सब कुछ है, ऐसा जानकर मुक्त चाहने वाले मनुष्यों द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ और तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं की जाती हैं। अब इसमें मैं पढ़ देता हूँ कि आई डोंट हैव माय ओन बिग अंडरस्टैंडिंग। इसमें है, केवल परमात्मा की प्रसन्नता के उद्देश्य में किंचित मात्र भी फल की इच्छा न रखकर शास्त्रीय यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्म किए जाएं, कारण कि असल में ये बहुत काफी सोचने की चीज है। इट इज नॉट वेरी, मैंने इसका जो उसकी अनुभूति होने में, अनुभूति होगी, बड़ा शब्दों से एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है इसको। देखिए, हाँ, ये तो बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि तत् जब आप कहते हैं दैट, व्हेन यू से दैट, you really don't have any clear cut idea what you are talking about that. If you talk about this mouse, okay, that you know that this is in front of you, but that is, which is not here at this point, but you are trying to know him. So we exactly don't know him completely, okay? That's why we use tat, and before we use the word om. Om tat means that which is absolute truth. I am doing that for the sake of that, all these kriya, okay? Or sat is which is only exist. Om tat sat iti. Iti means that's the end. Iti. Om tat sat iti. ये तीन, ओम तत् सत और इति, मतलब तीन तो वो हो गए, और इति है दैट्स ऑल, ना दैट्स ऑल। सो इति मीन दैट्स ऑल। ओम दैट इज सत, वही है, और उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य मीन्स it's not, it's a truth. Sat means doesn't mean truth, okay? That is satya. Sat is which is the essence of whole thing. It's like, na, sat is a goal. तो वो सब विकृत में तत्व जो है इसमें छुपा हुआ है, उसकी वजह से उस सत की वजह से हमारी बॉडी में चेतना है, और हम उसको देख नहीं सकते, जिसके तत् कहते हैं, वो उसके कारण सत्य। तो ये जरा थोड़ी सी अभ्यास के बाद समझने की चीजें हैं, और इसकी व्याख्या तो कुछ भी दी चेतना भी सत्य है। जी, चेतना स्वयं प्रकाशित है,
हाँ, और चेतना स्वयं प्रकाशित है। जो हमारा माइंड है वो स्वयं प्रकाशित नहीं है, वो रिफ्लेक्ट करता है चेतना को। जैसे मिरर है ना, मिरर में कोई लाइट अपनी नहीं है, लेकिन अगर सूरज की रोशनी पड़े तो वो उसमें लगता है कि इसके भीतर सूर्य नारायण भगवान है। तो इसी तरीके से हमारा माइंड है और जो हमारे भीतर की चेतना है उससे वो प्रकाशित होता है, उसमें गुण आ जाता है अनुभूति का, देखने का। Yeah. लेकिन वो जो है, एक बात और भी है जी कि सत की जो चेतना है ना, हाँ, वो माइंड की हर चीज को प्रकाशित करती है। हाँ, अच्छी बुरी एवरीथिंग इज प्रकाशित। बिना चेतना के कुछ माइंड का अनुभव नहीं हो सकता है, कुछ हाँ जी, कुछ मालूम नहीं पड़ सकता है। shall I say something? मैंने गूगल किया तत् का मीनिंग। Okay. देखिए गूगल का आपने अब कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। आप जानती हैं गूगल की बहुत एक सेकंड, जो ये बोल रहा है, I mean it will just 2 lines. That word means everything belongs to the God. By keeping that in mind, the person seeking liberation selflessly do the yag, tap and dan without desiring any of the fruit of the actions. बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है, nothing wrong with it, but the actual meaning tat is referring to God. गाना है ना, तुम्ही हो माता तुम्ही हो पिता, तो तत् हाँ। तत् भगवान तुम्ही हो, सब तुम हो। या ये बात आपने बताई। हाँ, तत् means तुम ही हो माता, तुम ही So पिता। that he says, no, everything is God. That is to me, you are alone. Yeah. चलिए ठीक है, अपनी अपनी परिभाषा भी हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग अपनी अपनी बनती जाती है इस फील्ड में, तो ऐसा ही है सबका। देखिए आध्यात्मिक विषयों में जब गूगल करें आप, तो जरा देख लीजिए कि किस किस की गूगल की डेफिनेशन आई किसके पास है। नहीं, अच्छा, गूगल में करते हैं आप। मैंने ये लिखा कि इन भगवत गीता, तत् का मतलब इन भगवत गीता, तब उसने ये बोला, probably otherwise it would have given some other meaning. अच्छा, देखिए तत् इत अनवसंधाय, तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए सब कुछ है। तत् जो है इन रियलिटी इज अन, भगवान का नाम अनाम है। तत् 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 जैसे हम कोई नाम दे दें राम या कृष्ण के, तभी स्पेसिफिक हो गया। लेकिन तत् जो है, तत् का लिटरल मीनिंग संस्कृत में दैट। Yeah. So that applies to the whole population of everywhere, not any specific population of any part of the world, right? So सबके लिए वो हिंदी में कहेंगे वो। ठीक है, चलिए अगला 26 और 27 पढ़ते हैं और उसके बाद फिर 28 रह जाएगा। सद्भावे सद्भावे च सद इत एत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्माण यथा सच शब्दा पाठ युज्यते। हे पार्थ, परमात्मा के सत इस नाम का सत्ता मात्र में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा प्रशंसनीय कर्म के साथ सत शब्द जोड़ा जाता है। ये है 26। द वर्ड सत मीन्स इटर्नल एग्जिस्टेंस। मैंने कहा था ना, एग्जिस्टेंस and goodness. O Arjun, it is also used to describe an auspicious action being established in the performance of sacrifice, penance and charity is also described by the word sat, and any act of such purpose is also named sat. So sat carries various meaning. So सत्य भी आता है, सत्य सत्य तो वो हो जाता है जैसे कि आप कहें कि नहीं दिन है कि रात है, तो अगर आप दिन को दिन बताएं तो इसका मतलब आप सत्य बोल रहे हैं। अगर आप दिन को रात बताएं तो आप असत्य बोल रहे हैं। तो वो सत्य और असत्य व्यवहारिक उसमें आता है ना। ये जो सत्य है ये दूसरी चीज है, ये पूरा शाश्वत है। या ये है इटर्नल एग्जिस्टेंस इज सत्य।
जैसे एग्जिस्टेंस हमारी बॉडी का है, ओके, जो हमारी बॉडी है वो असत है क्योंकि इसका इटर्नल एग्जिस्टेंस नहीं है, और जो हमारी आत्मा है उसका इटर्नल एग्जिस्टेंस है, वो सत है। जैसे उसमें कृष्ण भगवान ने 2nd चैप्टर में कहा था, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, कि जो असत है उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है क्योंकि इसका बॉडी का ना तो पहले था एग्जिस्टेंस। जैसे जो बच्चे या जो प्राणी अगले साल पैदा होंगे ना, जिनका अगले साल जन्म होने जा रहा है, अभी कंसेप्शन भी नहीं हुआ है लेकिन होगा, उनका कहाँ एग्जिस्टेंस है? देयर इज नो एग्जिस्टेंस। और उसके बाद जो चले गए इस संसार से, उनका भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये है असत। तभी कृष्ण भगवान ने कहा, ना असतो विद्यते भावो, जो असत है उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, थोड़ी देर में अपीयर हुआ। जैसे रेनबो है, उसका इट हैज नो एग्जिस्टेंस एक्चुअली। और सत ना अभावो विद्य से सता, और जो सत है उसका कभी अभाव नहीं होता है, वो कभी खत्म नहीं होता है, ज्यों का त्यों रहता है। तो ये इस मामले में जरा आप समझने की कोशिश कीजिए सत को। असल में सेन जी, जो सूक्ष्म शरीर है वो हाँ। सत है मेरे ख्याल में, नहीं, क्योंकि उसका सूक्ष्म शरीर भी असत है, कोई किसी तरीके का वो शरीर सत नहीं है, तीनों शरीर असत है सूक्ष्म सत्य नहीं है, सूक्ष्म ना। सत्य, क्योंकि सूक्ष्म के अंदर ही सारा जो आदमी मरने से पहले और मरने के बाद में हाँ, वो सत्य में, उसमें सूक्ष्म शरीर में रहता है। हाँ, जैसे मैंने सूक्ष्म रहता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में रहेगा और फिर दूसरा उसको शरीर मिलेगा, लेकिन उसके बीच में क्या कहते हैं, सूक्ष्म शरीर बदल जाएगा ना अगले जन्म में। सूक्ष्म शरीर जो है, जरूरी नहीं कि आपका वो वही का वही रहे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है ना। तो वो असत हुआ इस कारण। लेकिन जो आत्म तत्व है, जिसके कारण ये सब सत क्या कहते हैं, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर में चेतना आ रही है, वो तो दूसरा ही कारण है, वो कभी नहीं खत्म होता है। अच्छा, इसमें सूक्ष्म शरीर में चेतना होती है? हाँ बिल्कुल होती है, सूक्ष्म चेतन नहीं होगी तो फिर काम हो जाएगा। लेकिन चेतना ऐसी नहीं होती जैसे हमारे वो एक्सटर्नल तो माइंड। जीव की चेतना है। हाँ, जीव की चेतना है। जैसे आप जब सो रहे हो, व्हेन यू आर इन ए डीप स्लीप, स्टिल यू हैव चेतना। चेतन तत्व उस समय भी है, सिर्फ ये है कि जो फंक्शनल माइंड है वो कंप्लीटली आउट ऑफ सर्किट है। या ये श्लोक बहुत प्रासंगिक है हमारी वर्तमान क्रिया के साथ, देख रहे हैं ना, क्योंकि जैसे हम इसको बोलते हैं सत्संग, राइट। हाँ, सत मतलब क्योंकि ये संग जो है ना, ये जो इस संग में हम जो बात कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट को हमने, वट एवर सब्जेक्ट मैटर वी हैव चूजन, it is for the last thousands of years, okay? Just like if we talk about the Taliban, okay? I mean, तालिबान के बारे में क्या पहले कोई बात नहीं थी, अब बाद में कोई बात नहीं होगी, लेकिन आत्मा परमात्मा के बारे में तो हमेशा बात होती थी, हमेशा होती रहेगी। संघ के माने आश्रय भी है। हाँ, संघ के माने आश्रय भी है। हाँ, आश्रय कुछ भी कर लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं 77। यज्ञ तपसि दाने चा स्थिति सा सद इति चा उच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सदित्यमाविधीते। यज्ञ तप और दान रूप क्रिया में जो स्थित निष्ठा है वो भी सत ऐसी कही जाती है, और उस परमात्मा के निमित्त किया जाने वाला कर्म भी सती कहा जाता है। So he's saying the word sat means, सत को जरा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, वेयर ये सत के यहाँ की जो उसका कॉन्टेक्स्ट है। अच्छा, the word sat means eternal existence and goodness। वो हमने बताया था, जैसे body is asat and atma is sat। ओ अर्जुन, it is also used to describe the auspicious actions। जितने भी auspicious actions हैं, the actions which is done without our selfish motive, they are also called sat। सत के माने क्या हुआ? उसको सत्कर्म, उसके लिए सत्कर्म कहते हैं ना, सत्कर्म। अच्छा, सत्कर्म, ओके, वो सत्कर्म हो गए। Being established in the performance of sacrifice, penance and charity is also described by the sat। When we are established in the performance of sacrifice, penance and charity, ये भी हम कहते हैं सत्यनिष्ठ। सत्यनिष्ठ means we are established in the sat, which is
eternal. And so any act for such purpose is also called Sat. If whatever we do, any act to be established in Sat is also called Sat. ये शब्द आपने अच्छा बताया, एस्टैब्लिश सत्य, एस्टैब्लिश वाला शब्द बहुत अच्छा है, to remember it. Yeah. Right now we are focusing our attention. That means we are establishing in Sat. And when we go back and come out the worldly thing, like being happy that the stock market went up or like this, that's Asat, because today's stock market is up and it will go down. So there is no, or anything anything you talk about, like you talk about your pickleball or anything, But when we talk about Atma, Paramatma, soul, Shubh Karm, then these are all things are Sat. चलिए Now, ठीक है. now this last one. अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस तप्तम कृत चायत असिद्ध इत उच्चते पार्थ नचा तत्प्रेत नो ही. O son of Partha, whatever act of sacrifice or penance are done without faith are termed as asat. They are useless both in this world and the next. हमें इसको तो कोई, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. असल में ये जो आपने बताया है, इसका जो पूरा अध्याय है, उसका नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग. तो श्रद्धा के भी सारा है. Everything is on. Yeah. So this ends the chapter. Om Tat Sat Iti. Srimad Bhagavad Gita Supnishat Brahma Vidyayam Yog Shastre Shri Krishna Arjun Samvade Shraddha Traya Vibhag Yogo Nam Saptadasho Adhyaya. Jai Shri Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. ये देखिए जितने भी चैप्टर हैं उन सब में एंड होता है तो हम यही प्रोनाउंस करते हैं ओम तत्सत इति. ओम तत्सत. Because these all chapters are. असल में ये गीता ब्रह्म विद्या भी है और योग शास्त्र भी है पूरा. हाँ जी, है योग शास्त्र तो कह रहे, उपनिषद भी है, एक वन ऑफ द उपनिषद. सबका सार है. हमारा बिल्कुल. अब भजन हो जाए. आज तो उमा जी आए हैं ना, भजन होगा. उमा जी करेंगे. वेलकम. बहुत दिनों के बाद आई है. मेरा तो सोती हूँ मैं, आज पता नहीं कैसे जाग गई. तो सोने का गाना गा लो ना. ना तो मेरा यहाँ हारमोनियम है, ऊपर बैठी हुई हूँ. क्या ये दिखा रही हो, बहाने बना रही हो. कोई नहीं है. चलो हम 2 लाइन माता के भजन बोल देंगे. अभी आपका ये टॉपिक चल रहा था वो खत्म कर लेना. हो गया ना टॉपिक हो गया हमारा. वो जनगण मन हो गया, इसलिए तो आपको बोला. तो या अगले हफ्ते हम लोग 18वें अध्याय से करेंगे, तो अभी भजन भी कर लेते हैं. मैं इंडिया जाऊं उसके पहले पूरा गीता पूरा होना चाहिए. कब जा रहे हो? तुम जब टिकट निकाल के दो. अच्छा, मैं तो जा रही हूँ. अब जा रहे हो जयंती? ये टिकट निकालेगे ना मेरा. I have come back. बेटा जब भेजेगा तभी जाऊंगी. भगवान चलो हो जाए. जब इच्छा होगी तब जाएंगे आप. वो रहता तो मैं कब की चली गई होती. देखिए जब मौका तब आता तभी जाता है. तो कहने नहीं तो इसलिए गीता सीखा ना, तो अभी अपने हाथ में कुछ नहीं रहता है. मैं अपने आप को बहुत प्राउड था. आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट. अभी मालूम पड़ा कि जमीन पे ही रहो, ज्यादा नाचो मत. आज जयंती जी ने all the 700 श्लोक पढ़े हैं गीता में. वाओ.
No, I will recite daily for Navratri. अच्छा, Devi. Oh, really? 2 घंटा लगता है, great. जबरदस्त, वाह। तो भी टिकट नहीं मिल रहा है ना। किसी तो मिल पर्पस रहा के है। लिए कर रहे हो? पर्पस खराब है, पर्पस खराब है। देखिए इतना पढ़ा है गीता में कि पर्पस के लिए मत इच्छा करो। मत रखो। नहीं, I mean, मालूम इतना है, मालूम इतनी है, भगवत ऐसे मजाक कर रही हूँ मैं तो इतनी अपनी भगवत इच्छा से गीता कर रही हूँ। पढ़ने के बाद आप सिर्फ इंडिया का ही टिकट मांग रही हैं जयंती जी? मांग रही कहाँ हूँ का मांग ऊपर रहे का, हैं? मगर उधर स्विट्जरलैंड मिलेगा तो का। पहले अच्छा है। अच्छा अच्छा, मैंने अच्छा, सोचा ना, जो भी आप कर रही है ना वो पूरा आपके साथ जाएगा। या वो तो तो जाएगा उसको जाएगा। कुछ छू नहीं सकता है। Yeah. It will all go with you. या चलिए एक भजन नहीं, कर वो लेते माँ हैं। का दिल रहता ना, इधर मरूंगी तो इसको $10,000 हो जाएगा, उधर 2,000 में हो हाय। जाएगा। पैसे के अरे पीछे मत लगो, बाबा, आपके पास इतना बहुत तुमने पैसा है। कमा लिया है। जोकिंग जोकिंग मनी, जोकिंग। अब वही जोक में सब कुछ बोल देते हो। Let me say something to करेंगे you. तो नहीं तो आपको कैसे मजाक कर रही हूँ। अरे no, don't say such things even in a joke. आप कह रहे हो ना जयंती जी कि मैं 700 पढ़ के आई हूँ आज, तो हाउ डू यू नो that what you're reading and आपकी जो prayers है is keeping you safe here? How do you don't know that? How don't you know इसलिए that? तो मेरे फ्रेंड्स वही फिर इसको बोलते हैं खुशी कि से कहिए भगवान ना। तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहा है, इसलिए तुमको उधर बिठा के रखा है। या बहुत अच्छा किया मुलुंड है। वाज वेरी बैड सिचुएशन ना, मेरे सामने की बिल्डिंग में 10 पेशेंट थे, 2 मर गए, तो बोला गॉड इज टेकिंग केयर ऑफ यू। Yeah, इसी का that's भरोसा what रखो I ना। feel. अगर आप इसी का 700 भरोसा पढ़ते रखो, भी ना कोई तब भी फर्क उन्होंने नहीं पड़ता। God will still take care of you. अगर ना भी मैं तो पढ़ते कितना ना, टाइम पढ़ती हूँ, हमारा ग्रुप है ना, एवरी मंथ एकादशी को हम 700 पढ़ते हैं। चलो अच्छी बात है वो तो। दीपक जी शुरू कर दीजिए अपना भजन आप। चलिए तो भजन उमा में जी, भजन उमा जी शुरू करें नहीं कीजिए कर रहे हैं? दीपक जी। दो उमा जी तीन लाइन बोल सोच रही देते हैं। हैं हम हाँ, माता का उमा जी भजन। बोल रही है, ठीक चलो है? जल्दी। उमा जी भी करेंगे अब 2-3 भजन। लाइन बोलते हैं, भजन माता का है। आप बोलने लगी हैं जी। उमा जी? हाँ जी। चलिए करिए। जगे दिन रात मैया जी तेरी जोत जगे, जोत जगे दिन रात मैया जी तेरी जोत जगे। सुनो ज्वाला मात मैया जी तेरी जोत जगे, सुनो ज्वाला मात मैया जी तेरी जोत जगे। तेरी जोत ज्वाला रानी, तन मन शीतल करे भवानी। भक्तों की हर बात मैया जी तेरी जोत जगे, जोत जगे दिन रात मैया जी तेरी जोत जगे। जय माता की। जय माता की जय। जय माता। जय माता दी, थैंक यू। वेलकम। नवरात्रि चल रहे हैं तो मैंने भी माता का एक भजन जो मैं गाता हूँ, पहले भी 1-2 बार गाया है, वही गाता हूँ, माता तेरे भवन में। ठीक है। एक बात मैं बताऊं आपको, जब महाभारत में भगवत गीता जिस जगह चालू होती है उससे पहले अर्जुन ने देवी मैया से प्रार्थना की थी। अच्छा ठीक है। तो इट्स अप्रोप्रिएट। माता तेरे भवन में सुख शांति का बसेरा, माता तेरे भवन में सुख शांति का बसेरा, माता तेरी शरण
सौभाग्य का सवेरा माता तेरे भवन में सुख शांति का बसेरा माता तेरी शरण में सौभाग्य का सवेरा माता 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 जो आए पास तेरे तो जाए सौ बलाए जो आए पास तेरे तो जाए सौ बलाए जीवन करे उजाला नख चंद्र की कलाएं माता रहे न मन में माता रहे न मन में क्षण मात्र को अंधेरा माता तेरे भवन में तेरे चरण तले माँ उगती है सौ उषाएं तेरे चरण तले माँ उगती है सौ उषाएं दिश देश की रक्ष कोई करुणा किरण भुजाएं तेरी गिरह गगन में तेरी गिरह गगन में पर्वत पे तेरा डेरा माता तेरे भवन में सुख शांति का बसेरा माता तेरी शरण में सौभाग्य का सवेरा माता 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 अंबर में जितने तारे हैं शब्द प्रार्थना के अंबर में जितने तारे हैं शब्द प्रार्थना के धरती पे जितने दीपक दीपक है भावना के हर फूल फूल बन का हर फूल फूल बन का करता है भजन तेरा माता तेरे भवन में सुख शांति का बसेरा माता तेरी शरण में माता तेरी शरण में सौभाग्य का सवेरा माता 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 धन्यवाद धन्यवाद बहुत धन्यवाद धन्यवाद एक्सलेंट एक्सलेंट थैंक यू वेरी नाइस, बड़े प्रेम से गाया है आपने।
Very nice, really. मैं सबसे अब नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार हितेन जी। नमस्कार। ठीक है। नमस्कार। यतेंद्र जी का माइक ऑफ है। आपके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। या चले गए हैं। चलिए, और कोई भजन गाना है किसी ने? नहीं तो फिर हम 10 मिनट की मेडिटेशन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, लेट्स गो टू मेडिटेशन। Yes. ठीक है, ओके। चलिए, ठीक है। जैसे आप स्थिर आसन में बैठ जाइए सुखपूर्वक। बॉडी erect, neck erect, and your gaze between your eyebrows. और फिर चित्त को बाहरी वृत्तियों से भीतर की ओर ले जाने की कोशिश कीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं जिससे आपको सहायता मिलेगी। ओम